Good morning. Today, again, we are here with our new episode of Anita's Talk Show. And today's guest is a very special to my heart, and that is because she is a Vedic coach. And I know that we all, as Indians, we link to Vedas. And this is my basic attraction to invite this special guest on my show and let's have some talk with her regarding the Vedic knowledge. And she is connected to a very special niche of hers, which we'll ask her to come up with. And before I start, I would like to introduce that I am Anita Singh, a behavioral parenting coach, and this is my show, Anita's Talk Show. And with this, we'll start our show today. And let's invite Vishali Behini to our talk show today. And welcome, Vishali ji. We are very happy to have you on a show today. Thank you. Thank you very much. And thanks, really thanks for inviting me. Right. So, in this way, all the audience are watching you, and I request all the audience to keep their notes ready and pen and paper so that they can note down important aspects of Vedas and especially what his her niche is. It's very surprising and new to me. And let's listen from her itself. Right. Vaishali ji, today you are here on a platform and we are blessed to have your ideas today and we are looking forward कि आप हमें क्या देने वाली हैं आज और अपने ऑडियंस को आप उनके डाउट्स कैसे क्लियर करेंगी और आप कई और एपिसोड्स पे पॉडकास्ट पे जा चुकी हैं एंड टुडे यू आर हियर so in this way we are all waiting for your important golden nuggets which you are going to give us today related to your they like Vedic wealth coach as you are called as and dealing with wealth. This is a very important thing and each one of us are looking towards wealth and wealth is a very important aspect of our lives. This is very important. So before we start on your specific niche, before introducing yourself, that how you have entered this kind of niche, which I'm very inquisitive to ask. Thank you. Thank you very much for inviting, first of all. And it is very actually surprising for everyone ki how I come into the occult, first of all, ki how I Yes, entered in the occult. Though yes. I was from a family that is not at all, believe in the occult science. Oh, Totally. Though we are very much into the religious thing, uh, right. पूजा and मेरे father ने बहुत सारे temples बनवाए. So all those things. So they do on the things, most of the thing, not most of the thing, but yeah, some of the things and on Muhurat and all those things, but they Oh, never ever believed in the occult science. But in the whole family, I am the only one who is the totally believer of the occult science since a childhood. oh, I was so much into it that my friends recalled that in school time you used to see the hands and lines, uh, mm, and my whole family was against it when I talk about the things like do some rituals and Sola Somvar and the तुलसी तेला बोलते हैं, दैट इज द तुलसी 11 होती है, उस समय 3 दिन निर्जला रखा जाता है, जो मैंने रखा हुआ है. So oh, and the school, that is on the school and college time, but they are totally against it. But right. they stopped me to learn all those things, but they Mhm. never told me to don't do the this vrats and all. But they used to say कि भक्तन हो गई है and अंधविश्वासी है. I heard Yes. so much of it. And I got very early marriage, that is around 1920. I got married,
And when I come to my in-laws house, they also believe in all those things, kundli and all those things. My mother-in-law used to, we used to go to one pandit that is very very old and very from very small village, but he told everything true, so true. So I was very much inquisitive already in this thing. And then I believe, oh acha, chalo chalo, I'm going to do, and I'll ask this question, I'll ask this question. Then he's like, "Ki, your aura is something different." Always they say me ki, your aura is different. And in 2006, 5 around 5, yeah, 5 6, I watched a TV show. And there one of the celebrity was there, and with her his with her tarot reader was there. Then they are talking about tarot. And then suddenly I don't know what hits me, and I say, "Okay, I want to learn this art. This is the beautiful thing, and I want to learn this." So because this is not a predictive tool, but it is a guidance tool, so it is more or less coaching thing. So I like that idea a lot. And for by God's grace or whatever my manifestation, in 2006 I got a teacher over here in India. Though she don't didn't teach me properly, but yeah, I got to know the what's the card, what's the meaning, what's the all those things are numbers or colors or what they are saying. And in 2007 we went to USA for 2 years. And there in USA I polished little this thing. And then got to know about self help. So all those things, then I came back and started doing for my friends and families, and they are saying, "Oh my god, you are telling to so true, you are giving so much of guidance." Then I polished my all the things, and then I was very good in the numbers. Somehow numbers also attracted me since childhood. I was getting the 100 marks, 97, 95 marks in maths always. So numerology, I learned numerology. Then just numerology, I learned by books. Reading, actually, I most of the art I learned by the books a lot. Then I got the teachers, and then I got the teachers, then I got the teachers, and somehow I come into the That's occult from 2006, you can say. So oh, I'm into this field. Yeah, but professionally, I started around 2015, 16. Before that, I was not doing professionally. I was doing for friends and family and for myself. And right. though my husband was also not much believer of it, but when he saw the results, now he's completely believer of my size. um, Yeah. so, yeah, but although in this journey I got to know the about the money energy a lot. I just energy I know, because in the science, this science, we know about energy, because I learn healings, healing modalities, also lots of healing modalities, so energy was there. So I saw the people, and then people coming to me for the, having a money problem. Then they are having a debt problem a lot. And then when I doing the research, I done my completed my doctorate degree by tarot sciences, in tarot science only. Oh, So yeah, amazing. by research, doing this research and all PhD, I got to Mm. know about this debt, and this is very thing. And when uh, I saw the things, yeah, how to do it, it is not going to be a one thing that we can eliminate. So I just combine lots of modalities, and here I am. Very nice, very nice. So we are really very blessed to have you here. And why? Because you are the main basic idea behind that you have given your portfolio. It's very strong. That first, you are a doctorate in Vedic Tarot. sciences, tarot, right? Yeah. Tarot, and then you have other fields also, which you just mentioned, and you have given the detail to the audience. And with that, I think we should understand that the uh, debt elimination Vedic is also one of the very important and very attractive title you have kept in before you, that debt elimination.
Now, these days, people are too much worried about financial issues. अब आपके घर में आपका फाइनेंसेस वुमेन भी देख रही हैं, और बाहर जेंट्स देख रहे हैं, वुमेन, वर्किंग वुमेन, दे ऑल वरीड अबाउट दिस डेट एलिमिनेशन. सो अब आपने इस नीश के साथ आप कैसे लोगों के साथ पहुंच पाती हैं, या लोग आपके पास पहुंचते हैं? सी लोग अपने आप भी पहुँचते हैं और बहुत बार लोग पहुँचते हैं एक-दूसरे के बता के कि जिसने मेरे से पहले वर्क किया है, वो राइट. बताते हैं किसी और को, देन दे कम टू मी एंड द पीपल गॉट रिजल्ट्स एंड द थिंग्स गोइंग ऑन. एंड अभी हम्म. मैंने ऐड वगैरह स्टार्ट नहीं किया है, दो सूनर आई एम गोइंग टू स्टार्ट माय एड्स आल्सो. हम्म. मेन चीज़ क्या है कि हम जब मनी एनर्जी के साथ बातें करते हैं या मनी एनर्जी की बातें करते हैं, सो हम्म. पीपल समझ नहीं पाते हैं. जैसे मैं जाती हूँ नेट पे भी, मैं बहुत सारे लोगों का देखती हूँ, कमेंट्स देखती हूँ, या खासकर जो एस्ट्रोलॉजिकल या टिप्स बताते हैं उनके नीचे कमेंट लोग लिखते हैं कि भाई आप क्यों नहीं अंबानी बन जाते हो, या आप क्यों नहीं ऐसे कर जाते हो, आपको ऐसा होना करेक्ट. चाहिए. यदि मुझे कोई बोलेगा तो बोलेगा कि आपके पास करोड़ों होने चाहिए. दो आई करेक्ट. कैन नॉट टेल व्हाट हाउ मच आई एम हैविंग. बट इट इज नॉट लाइक दैट, यू नो. हर एक के नंबर्स अलग यहाँ मैं हर चीज जोड़ती हूँ, बिकॉज आई हैव डन लॉट्स ऑफ मोडालिटीज. तो मैंने देखा कि कोई भी एक मोडालिटी सिंपली आपका सारे सॉल्यूशन नहीं ला सकती है. आपको कुछ ना कुछ अदर मोडालिटीज उसको एड ऑन करना पड़ता है. सो मनी एनर्जी इज lots of about not only your numbers including everything, your name, your date of birth, your mobile, and every number you are using in your life. सारे numbers मायने रखते हैं. और दूसरी हम्म. चीज की आपका सबकॉन्शियस, इट इज करेक्ट. रियली रियली मैटर्स कि आपने बचपन से मनी के साथ में अपनी एनर्जी कैसे बनाई है, अपने थॉट्स कैसे बनाए हैं. इट इज रियली मैटर्स. वेरी नाइस. वेरी नाइस. So with that, um, the second again title you've got with your name is that you are a numerologist, a healer, right? And so, as a healing concept, what ideas would you give to the audience that how can you help if they contact you? या फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं आइडिया ऑडियंस को ये दूंगी कि जो भी रील्स वगैरह में बताया जाता है, जितनी भी चीजें, मैं ये नहीं कहूंगी कि हर कोई सही बताता है या हर कोई गलत बताता है. Correct. हाँ, बहुत सारी चीजें सही होती है, बहुत सारी चीजें दे मेड अप एंड दे टेल. तो दैट यू हैव टू डिसाइड कि किसका आपको करना है, किसका नहीं करना है. Right. दूसरी चीज वेरी इंपॉर्टेंट, वो जो बताया जाता है दैट इज वेरी जर्नलाइज. Okay. Okay, so very generalized. But when you come to the astrologer, yeah, when you go to the healer like me, or the tarot reader or occult sciences people who are very much expert, so जब आप Hmm. उनके पास आते हैं तो they go deep down to your personalized thing. सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आप जनरलाइज कर रहे हो, आप जनरलाइज करोगे तो आपको जरूरी नहीं है वो रिजल्ट्स मिले. कुछ को मिलेंगे, कुछ को नहीं मिलेंगे. बट Okay. आप जब हमारे पास आते हैं, सो वी सी द ईच एंड एवरी प्रॉब्लम, व्हाई इट इज. हम कोर में जाते हैं कि क्यों हो रहा है. What is the reason? Maybe the Vastu is a reason. Maybe your numbers is a reason. Maybe your mindset is a reason. Maybe your energy, your partner's energy. Everything. आपका मोबाइल नंबर से कुछ गड़बड़ हो रहा हो, तो हम जब देखते हैं तो हम ओवरऑल देखते हैं. सो जनरलाइज पे जाके जज नहीं करना चाहिए. यू हैव टू गो टू पर्सनलाइज. आप पर्सनलाइज आइए, पर्सनलाइज मिलिए, और फिर अपनी जो हम देते हैं, हम सारे चीज़ें जो उनको जितनी भी रेमेडीज़ देंगे या जितनी भी चीज़ें कराएँगे, वो पूरी की पूरी पर्सनलाइज़्ड होती है. तो ये डिफरेंस हो जाता है जनरलाइज़ एंड पर्सनलाइज़. सो पीपल शुड गो to the personalized people, to the expert teacher, rather than seeing the reels and doing by their own. Right. That is very important. Very nice. So now, another I have seen very new, which is not known to me. Also, you can give a proper explanation of it. That dermatographics analyst. Yeah. What is it? Let the audience know that.
Yeah, dermatographics analysis is the totally different from the occult. It is all about your fingerprint. यदि अभी बहुत इजी हो गया है हमको समझाना, क्योंकि आधार आ गया है, सबको पता है कि उनकी फिंगरप्रिंट दूसरे की फिंगरप्रिंट से मैच नहीं करती, बट लोगों को ये पता नहीं है कि उनकी फिंगरप्रिंट उनके ब्रेन से डायरेक्टली कनेक्टेड है। ठीक है, तो आपकी ये जो पांचों फिंगर्स के जो अपर में यहाँ पे फिंगरप्रिंट्स हैं, दे आर कनेक्टेड टू योर लोब्स, ब्रेन लोब्स। ब्रेन में भी 5 लोब्स होते हैं, लेफ्ट ब्रेन राइट ब्रेन, दोनों की ही फिंगर से कनेक्टेड है। तो जब हम इसकी फिंगरप्रिंट्स की एनालिसिस करते हैं तो हम आपके ब्रेन का एनालिसिस करते हैं एक्चुअली। तो जब हम ब्रेन का एनालिसिस करते हैं तो हमको पता चलता है कि आपके ब्रेन की वर्किंग पैटर्न क्या है, आपके ब्रेन के समझने का पैटर्न क्या है। दिस इज रियली वेरी गुड फॉर स्मॉल किड्स। हम 2 साल से शुरू करते हैं और मेरे पास 60 इयर्स से अबव तक के लोगों ने करवाया हुआ है। सो इट इज लाइक दैट कि आपको पता चलता है आपके बच्चे का पैटर्न क्या है। पहली बात, पढ़ने का तरीका कौन सा है, क्योंकि पांचों उंगलियों को सेम तरीके से नहीं पढ़ाया जा सकता। सो आपके वेक्ट थ्योरी काम करती है कि आपका बच्चा वर्बल है, ऑडिटरी है, कैनेस्थेटिकली है। फिर उसके कौन से लॉब्स में यदि कुछ हमको और ज्यादा ब्रेन के साथ सबसे अच्छा है कि हम वर्क करके उसको एनहेंस कर सकते हैं, तो कहाँ कहाँ एनहेंस की जरूरत है। तो उससे पता चलता है कि मैनेजमेंट में जरूरत है, मैथमेटिक्स में जरूरत है, साइंस में जरूरत है, लिटरेचर में जरूरत है, कहाँ जरूरत है। और आपका बच्चा यदि ड्राइंग पेंटिंग नहीं कर पाता है तो क्यों नहीं कर पाता है, उसके थॉट प्रोसेस कैसे है, उसके इनकोर नेचर कैसा है, वो कैसे लोगों को साथ उसको पार्टनरशिप करनी चाहिए या कैसे लोगों को अपना पर्सनल पार्टनर बनाना चाहिए, और साथ ही साथ उनको कौन से सब्जेक्ट्स ऐसे लेने चाहिए जो उनके ब्रेन के साथ बहुत कंपैटिबल है, और उसके साथ में उनको करियर कौन से करियर में जाना चाहिए। इट्स इंक्लूडिंग एक्स्ट्रा कैलिकुलर एक्टिविटी कौन सी करनी चाहिए जो आपका ब्रेन ज्यादा एक्टिव हो और आपके ब्रेन के साथ में अलाइनमेंट होके आप उसको कर सके। सो दिस इज द होल, इसका जो एनालिसिस किया जाता है दैट इज अ डर्मेटोग्राफिक्स एनालिसिस। Okay, magnificent. So nice. So that means you are full package, right? Yeah, And coming to the best part is that you are also an author. So let's yeah. know something about your author journey. हाँ, ऑथर जर्नी इज ऑल्सो जस्ट यू कैन से कि ये भी बहुत इन्फ्लु, बचपन में हमने कभी रियलाइज ही नहीं किया कि हम गाने बना रहे हैं। हम लोग शायरियां बनाते थे तो हमको लगता था ये सब कर लेते हैं, हमको नहीं पता था कि दिस इज द समथिंग यूनिक विद दैट वी आर डूइंग। हम गानों को तोड़ना मरोड़ना हमारे लिए बहुत बहुत मस्ती Mm. वाला होता था। फिर Correct. शायरियां, कोई भी ओकेजन पे किसी के लिए भी तुरंत शायरी बनाना, तो ये मेरे में था बचपन से। और इन दो Yes. हम लोग ने बचपन से बुक्स बहुत पढ़ी है। मेरे फादर वाज अ एविड रीडर, Oh, उनके हाथ में 24/7 एक बुक हुआ करती थी ऑलवेज। सो हमने उनको पढ़ते देखा है, तो हमने ऑलवेज हमने बहुत अच्छा साहित्य पढ़ा है। जयशंकर प्रसाद जी से लेके हरिवंश राय बच्चन, मतलब हमने कभी नॉर्मल बुक्स ऐसे पढ़ी नहीं है। जनरली अच्छी रीडर डाइजेस्ट है, सरिता है, धर्मयुग है। सो correct. हमने इस तरह की साहित्य पढ़ा है। फिर जब शादी सगाई के बाद थोड़े ज्यादा शायरिया रोमांटिक शायरिया में लिखने लगी थी। और फिर Yes. शादी के बाद मैंने कविताएं, जब मेरे हस्बैंड को भी लगा कि लिखती हो तो ट्राई, व्हाई डोंट यू ट्राई ना, थोड़ा और अच्छा ट्राई करो। एंड Right. देन फिर मैंने क्रिएटिव राइटिंग में डिप्लोमा का एक कोर्स किया Hmm. और इस तरह मैंने कविताएं लिखी। बट कहानी लिखना बहुत ही फ्लूक था। वो भी एक आया मेरे आंखों के सामने कि आप 1200 शब्दों में कहानियां लिखिए, एक कॉन्टेस्ट था। तो मैंने कहा Wow. कि अच्छा 1200 शब्दों में चलो ट्राई करती हूँ, दो कहानी इज माय नॉट माय फॉर्टे। Uh, बट जब मैंने कहानी लिखना शुरू किया तो आई एम वेरी बिकम पैशनेट। फिर मैंने कहानी लिखते लिखते ना, अभी मेरा उपन्यास आ रहा है बहुत ही जल्द। 15 अप्रैल को मैं लॉन्च कर रही हूँ ई बुक मेरे फर्स्ट उपन्यास की। तो जो भी लेना चाहे दे कैन कांटेक्ट एंड बहुत ही नॉमिनल प्राइस मैंने जस्ट 99 रखा है फॉर ई बुक। तो कोई भी right. इसे पे करके मेरा ये उपन्यास बुक कर सकते हैं, अभी प्री बुकिंग चल रही है। तो Right. ये एक लव स्टोरी उपन्यास मैंने लिखा है, तो बस। Oh, so nice. So, a fictional writer, and that means हाँ जी। you are a fictional writer.
अ, हाँ, अभी मैंने स्टार्ट फिक्शनल से किया है। सो स्टार्ट दो किया? सून बहुत सारी चीजें लाइन अप है, तो देखिए क्या-क्या आता है। Very nice, very nice. So this is feather in your cap कि आपने एक और उपलब्धि हासिल कर ली कि आपके पास ऑलरेडी इतना ज्ञान था वैदिक और राइटिंग और जो भी आप करती हैं अपना एलिमिनेशन के लिए। तो डेट एलिमिनेशन के लिए आपके पास क्या सोर्सेज हैं, या आपके पास लोग आते हैं सीखने, या आप उनको हेल्प करती हैं डेट एलिमिनेट करने में? इसके ऊपर थोड़ा सा आप वो करेंगी? हाँ जी। डेट एलिमिनेशन एक ऐसी चीज़ है कि पहली बात ना, जनरली मैं सिखा के भी वो लोग इतना करेंगे नहीं। मतलब सीख के क्या करेंगे? क्योंकि सीखने के बाद उनको दूसरों को सिखाना नहीं है, उनको तो सबसे पहले चाहिए कि हमारा डेट एलिमिनेशन हो। सो करेक्ट। आई वर्क वन टू वन विद दैम। I ओके। work according to your then their date of birth, according their issues. What is the exact issues when we talk? मैं उनका कोर इश्यूज निकालती हूँ कि उनके माइंडसेट सबकॉन्शियस, मैंने कहा मनी एनर्जी इज ऑलवेज अबाउट द सबकॉन्शियस फर्स्ट, सो आई गो यस। इनटू द सबकॉन्शियस, आई गॉट टू नो कि कहाँ इश्यूज आ रहे हैं। तो फर्स्ट हम सबकॉन्शियस से वर्क करना शुरू करते हैं, देन उनको कौन से मंत्र, आज क्योंकि हर एक व्यक्ति के लिए हर एक मंत्रा नहीं है, ये भी मैं आपको बता दूं। राइट। तो वो है एक मंत्रा फाइंडिंग करने का एक तरीका है। उससे हम फाइंड करते हैं पहले कि आपके लिए एकदम राइट मंत्रा कौन सा है। सो हम उनको वो राइट मंत्रा देते हैं। देन वी गिव सम रिचुअल्स टू डू द डेली। देन हम उनसे ही कुछ उनके रिचुअल्स लिखवाते हैं, कई चीजें लिखवाते हैं, अफर्मेशन सब हम उनसे ही लिखवाते हैं। सो वी ये पूरा की पूरा जो प्रोसेस है 30 to 90 डेज का है। ये इट टेक्स टाइम। मैं ये नहीं कह सकती कि आप 30 to 90 डेज में हर एक का डेट खत्म हो जाएगा, नहीं। बट यू गॉट द लॉट्स ऑफ वेज, डिफरेंट वेज टू आपका डेट एलिमिनेशन हो जाए। और दूसरा, इस डेट को लेके आपके दिमाग के अंदर हावी नहीं रहे, क्योंकि जब आप बहुत ज्यादा टेंशन लेते हैं और बहुत हावी कोई चीज होती है तो आप खुद ही नहीं कर पाते, उसकी एनर्जी डाउन हो जाती है। तो हम करेक्ट। उनकी मनी एनर्जी उनके साथ में इंक्लाइन करते हैं कि आपकी मनी एनर्जी उनके साथ अपनी खुद के साथ में इंक्लाइन हो। और दूसरी बात, जब ये मनी एनर्जी आपके साथ इंक्लाइन होना शुरू हो जाती है, तो यू गॉट द वेज, आपके पैसे आने शुरू हो जाते हैं, आपको रास्ते मिलने शुरू हो जाते हैं। देन आप जब मंत्रास के साथ, मंत्रा की शक्ति सभी को पता है, तो मंत्रा के अलावा क्रिस्टल्स, हम उनको साथ क्रिस्टल्स के साथ में काम करते हैं। कभी यदि बहुत ज्यादा जरूरत पड़े तो मैं उनको यंत्र भी बना के देती हूँ, क्योंकि यंत्रास भी हैं बहुत सारा। तो हमारे बहुत सारे यंत्र वर्क करते हैं। बहुत कम लोग यंत्रों के बारे में जानते हैं, तो मैं यंत्र बनाते हैं हम, पावरफुल यंत्र उनको देते हैं। हीलिंग करने की जरूरत हो तो मैं खुद करती हूँ वो हीलिंग, क्योंकि हीलिंग के लिए एक अलग पावर चाहिए, आपको पता ही है ये बात। तो वो हीलिंग मैं खुद करके देती हूँ। सो इट डिपेंड्स कि हम बहुत सारे डिफरेंट मोडेलिटीज के साथ में वर्क करते हुए एक एक चीज करते हैं। और बहुत सारी चीजें हम वैदिक करते हैं। बहुत सारे हम जो मंत्र है दूसरे, नंबर्स, इवन आई गिव देम नंबर्स टू राइट, numbers to chant. So, ओके। yeah. राइट। So it's a very सो very different. It is, I cannot say कि only one modality यही करो और इससे हो जाएगा, नहीं। Alignments, it is very important. सो आपकी ये सब बातें सुनकर मुझे स्वामी दयानंद सरस्वती जी की बात याद आ रही है, दैट ही ऑलवेज यूज्ड टू encourage, he used to always say, there was a saying that this slogan which he gave, that go back to Vedas, right? So now when he says that go back to Vedas, that means that it has been a very strong, effective, and a Yeah, total strength of a human being. right, Right. Right. So, but our modernization has, interfered, and people have forgotten. right. So now people like you, those who are really interested and are, put their 100% into it to spread this word out to the world. So I think we should be very thankful and blessed to coach like you,
those who are giving this much of effort and their time into this very special science, you can call special Indian science, which should be really given some place. Like our children are the next generation, they have almost forgotten these things. So if you put some light and you throw some energy into it, I think so it can again prosper, and people will take. And the topic which you have taken is debt elimination and Vedic wealth coach you have become. So again, it is a very correct hook to put faith of the audience into it. This is very important, right? And so now, faith, what do you call, like coming up in short, let's you can give a little bit of introduction about Vedas, just in short, so that audience they understand why have you called yourself Vedic wealth coach. Wealth people understand, debt elimination also people understand, but what is the relation between Vedic? Why, especially, you have put in your, this is your forte. Vedic knowledge is your forte, and you have amalgamated both the things. Yeah. This is the beauty of your, niche. So now, what made you to think that way in a complete scenario? ओके। अब सबसे पहले तो मैं बहुत ही एक पूरे धरती या उसका बोलिए जाए या पूरा भारत में बहुत एक कंकड़ की तरह हूँ। तो मैं अपने आप को बहुत ज़्यादा ये नहीं मानती कि हाँ, बट भगवान की कृपा है। भगवान की कृपा सभी पे बनी रहे और मुझे उस पे पूरा भरोसा है। सो मैं बहुत ही मतलब आई डोंट थिंक सो कि मुझे बहुत सारा ज्ञान है और समथिंग लाइक दैट। मैं बहुत नहीं, ऐसा कुछ नहीं। मैं जस्ट ट्राई करती हूँ कि लोगों की जितनी ज़्यादा हेल्प की जा सके। और जब मैंने देखा कि लोगों के साथ मनी एनर्जी के साथ इश्यू है और लोगों को बहुत ज़्यादा हमेशा अभी जो कलयुग है, कलयुग का टाइम जो है वहाँ पैसा सबसे ज़्यादा महत्व रखता है, ये सभी को पता है। हर Right, चीज़ पे हम पैसे से तोलते हैं, अब तो रिश्ते भी सब पैसों से तोलने लग गए हैं। तो right, जहाँ पैसों की बात होती है, तो लोग सोचते हैं अमीरों के पास ही पैसा है और गरीबों के पास पैसा नहीं है। अ, और मेहनत करने से पैसा आता तो एक मजदूर के पास या एक रिक्शे वाले के पास सबसे ज़्यादा पैसा होता। तो ये पूरा ये समझने की ज़रूरत है। अच्छा, वैदिक की जब आपने बात की, तो वैदिक इज़ ऑल अबाउट। वैदिक कोई एक चीज़ नहीं है कि आपने एक कोई वेद से उठा के कोई चीज़ उठा के ले आई। वैदिक इज़ अ टोटल कंबाइंड फेथ ऑफ योर्स। सबसे पहली बात तो मैं पर्सनली हिंदू सनातन हूँ, तो मेरा बिलीव हिंदू सनातन पे। हर एक का अपना बिलीफ सिस्टम है। आई okay, टोटली रिस्पेक्ट दैट। ऐसा नहीं है कि हर एक के सिस्टम में नहीं, हर एक के सिस्टम में एक चीजें हैं जो आपको अपने, सबसे पहली बात तो आपको अपने फेथ के साथ बहुत डीपली कनेक्टेड होना पड़ेगा। 100% बिलीव यहाँ पे वैदिक में आता है। सबसे पहली चीज बिलीव सिस्टम। इफ यू बिलीव, फर्स्ट ऑफ ऑल, आप right, क्यों बिलीव करते हैं? हम बिलीव करते हैं मंदिर में भगवान है, तो वहां की एनर्जी आप देखिए, आपके घर की एनर्जी से मंदिर की एनर्जी डिफरेंट होती है। तो सबसे पहली चीज बिलीव सिस्टम से ही आता है, जहां से आपकी अपनी एनर्जी चेंज होना शुरू करती है। तो हमारे जो आजू बाजू ऑरा है, जितना आपका ऑरा क्लीन रहेगा, ये ऑरा, चक्रास, एवरीथिंग कनेक्टेड टू अवर वेद्स, है ना? कहीं ना कहीं एवरीथिंग कनेक्टेड। चूंकि मैं अपनी मोडालिटी में ये सारी चीजें यूज करती हूँ। सबकॉन्शियस साइंस की बात नहीं है, okay, सबकॉन्शियस भी हमारे वेद्स की बातें हैं। right, चक्रास भी हमारे वेद की बातें हैं। जो right. ऑरा क्लिंजिंग है, हमारे यहाँ बातें की गई ऑरा क्लिंजिंग की। नमक का Mm, पानी डाल के पोछा लगाने की बात हुई है, सब ऑरा क्लिंजिंग। okay. सो साथ ही साथ मैं मंत्र मंत्र साधना करवाती हूँ, दैट इज ऑल्सो कनेक्टेड टू अ वेद। हम यंत्रों की बात करते हैं, दैट इज ऑल्सो अ वैदिक सिस्टम। क्योंकि Mm, आप मंत्र है, यंत्र हैं, एक तरीका है पूजा करने का। आपके कौन से मतलब किस तरीके से आपको करनी है, कौन सा मंत्र आपके लिए अच्छा रहेगा, एवरीथिंग इज फ्रॉम अवर वेद। इट इज दैट्स वाई मेरी मोडालिटी में सिर्फ
एक साइंस या ईएफटी या वैसा नहीं है, उसके अलावा सारी चीजें जो है वो कहीं ना कहीं वेदों से ही ली गई है। हमारी सारी साधनाएं जो ऋषि मुनि लिख कर गए हैं उस हिसाब से ही ली गई हैं। इसीलिए मैंने ये वर्ड वैदिक स्पेसिफिकली जोड़ा, बिकॉज कि मैं सबसे पहली चीज ये बोलती हूँ, इफ यू बिलीव देन कम, if you Good. don't believe in all those system, my system is like this only. So if you Very believe, क्योंकि इसमें जरूरी नहीं है कि सिर्फ हिंदू सनातन ही आते हैं, दूसरे काफी कास्ट के लोग, अदर अदर रिलीजियन के लोग भी आते हैं, और उनको फिर हम उपाय उस तरीके से बताते हैं। ठीक है, उनको उपाय उस तरीके से बताते हैं, और बहुत से लोग चाहते भी कि हम ये कर लेंगे, हम ये मंत्र कर लेंगे। तो ये मंत्र नहीं है तो दूसरे मंत्र हैं, इंग्लिश मंत्र हैं, फॉरेन के good. दूसरे मंत्र हैं, नंबर्स हैं, क्रिस्टल्स हैं, सबकॉन्शियसली वर्क है वो तो है ही। एंड आपका मेडिटेशन है तो मेडिटेशन भी डिफरेंट डिफरेंट टाइप का है। तो लॉट्स ऑफ थिंग्स आर देयर, सो इट्स नॉट वन थिंग। तो जब इसमें मैंने देखा कि बहुत ज्यादा मैं वैदिक चीजें यूज कर रही हूँ, हमारे सनातन की यूज कर रही हूँ, सो मैंने डिसाइड किया कि भाई क्लियरिटी होनी चाहिए लोगों को कि इसके अंदर पूरा वैदिक, काफी ज्यादा वैदिक है। मतलब Right. वैदिक काफी ज्यादा हमने वैदिक यूज किया है, दैट्स व्हाई इट्स अ डेट एलिमिनेशन विद द वैदिक वेज, सो आई एम अ डेट एलिमिनेशन वैदिक वेल्थ कोच। Very nice. So excellent. With this, I recall one statement that we say in Hindus that Hindu धर्म जो है वो धर्म नहीं है सच. It's a way of life. वे Right. Right. So when राइट it's way of life, there's so much beauty, so much nature in it. पूरा नेचर के साथ हम घुल मिल गए हैं। हम हर चीज नेचर के साथ चलते हैं, और तो और हमारी ध्वनि जो है उसको भी लेकर चलते हैं, और हमारी हवा पानी जितना भी है हम सबको साथ लेकर चलते हैं। सो हमने इससे तो जो आपकी ये जो आप इसमें पूरा अपना समय बिता रही हैं, इसका मतलब ये कोई एक धर्म के साथ जुड़ना नहीं हुआ। ये एक अपनी जिंदगी को चलाने वाली एक आपको हेल्प है आपकी ओर से। राइट। सो आई राइट थिंक इस चीज को लेकर अब एक हम बहुत देर तक आपसे बहुत सारे प्रश्न पूछ सकते हैं, बट अगर हमें अभी जैसे है कि हमें समय अलाउ नहीं कर रहा आपसे और प्रश्न पूछने का। बट एक क्वेश्चन मेरे पास और भी है, लास्ट क्वेश्चन। मेरे पास हमारे ज्यादातर ऑडियंस पेरेंट्स हैं, तो पेरेंट्स के लिए अब जैसे एग्जाम्स चल रहे हैं, अब एग्जाम्स के लिए बच्चे बहुत परेशान हैं। सो आप पेरेंट्स के लिए एक छोटा सा कोई टिप दे दें सो दैट पेरेंट्स को लगे कि हाँ भाई कुछ हेल्प हो गई है। जरूर जरूर। सबसे पहली बात तो मैं सबको ये बताना चाहती हूँ कि अभी जो है अ, होली के बाद से शनि जी ने मार्ग चेंज किया है, शनि देव ने मार्ग चेंज किया है। तो सबसे पहली चीज जो सबको करना चाहिए, और मैं आपको एक चीज बोलूं कि आप कितने भी उपाय कर लो, कितने भी, मतलब आप हर रील का उपाय उठा के अपने करना चालू कर दो और सोचो मेरे पास मनी बरसने लगेगा, और आप लाइफस्टाइल में चेंज नहीं कर रहे हैं, अपनी थॉट प्रोसेस में चेंज नहीं कर रहे हैं, तो कोई भी उपाय वर्क नहीं करता। इसीलिए लोग बोलते हैं हमारे को तो उपाय वर्क नहीं करता। क्यों? क्योंकि आपने लाइफस्टाइल चेंज नहीं करी, क्योंकि आपने अपनी थॉट प्रोसेस चेंज नहीं करी। हर एक चीज का अलाइनमेंट बहुत जरूरी है। सो यहीं से मैं स्टार्ट करती हूँ कि पेरेंट्स के लिए भी बहुत ज्यादा जरूरी है कि वो ये देखें कि उनके बच्चे कितने डिसिप्लिन में रहे। प्यार अपनी जगह है, डिसिप्लिन अपनी जगह है। शनिदेव डिसिप्लिन मांगते हैं। सो इफ यू डू, और पढ़ाई का कहीं ना कहीं यदि आप गुरु से जोड़ते हैं तो ये शनिदेव से भी जुड़ता है। तो यस। आपको कहीं ना कहीं डिसिप्लिन रखना बहुत जरूरी है। टाइम, एक टाइम डिसाइड कीजिए, अमूमन उस टाइम के अंदर आपको सो जाना है, इस टाइम के अंदर आपको उठ जाना है। दूसरी बात, सबसे इम्पोर्टेंटली, कि बच्चे जब उठते हैं वो अपना बेड क्लीन नहीं करते हैं, दैट्स रियली रियली ब्रिंग द बैड एनर्जी। वो आपकी रात भर की वही एनर्जी, आपने एनर्जी ही शिफ्ट नहीं करी, उस कमरे में आप रह रहे हैं। दूसरी तीसरी बात यह है कि आप थोड़ा आवाज, जितना मधुरता से बात करेंगे, आवाज में भी हम सब जनरली गले से बात करते हैं, बट आपको पता है नहीं होगा कि जो ऋषि मुनि या जिनके लिए हम अट्रैक्ट होते हैं वो लोग गले से बात नहीं करते।
सो वाह! या ये वो लोग गले से बात नहीं करते, तो एक बहुत तरीका है बात करने का, हम अपनी एनर्जी वर्ड्स फ्लो कहाँ से ला रहे हैं। सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। दूसरा, आप बच्चों के साथ में घर में जितना चीख चिल्ला कम होगा, जितने ज़्यादा आवाज़ें जो नेगेटिव आवाज़ें वो कम रहेंगी, वो बहुत अच्छा रहेगा। अभी हम बात करते हैं, ये तो हमारी लाइफ़स्टाइल चेंजेस की जो आपको करना ही चाहिए। जी, क्लीनिनेस रखनी चाहिए, सब क्लीन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। बच्चा थैंक कौन-सी दिशा में बैठ के पढ़ रहा है, ईस्ट दिशा में बैठ के पढ़ रहा है तो सबसे अच्छी चीज़ें हैं। तो वो एक ध्यान में रखना चाहिए। उसका बेड, उसका जो टेबल है, तो एवरीथिंग क्लटरलेस जितना रखेंगे उतना ज़्यादा अच्छी एनर्जी फ्लो होगी, ठीक वेरी है? नाइस। और जो इम्पोर्टेंट टिप ये है कि अ, गणेश जी के 12 नाम, अभी जो गणेश जी के मुख्य 12 नाम हैं, ऐसा होगा तो मैं कमेंट में लिख दूँगी 12 नाम। बिल्कुल, वो 12 नाम अपने बच्चे से रोज ज़रूर बुलवाइए, और मदर भी प्रॉक्सी में साथ-साथ वो 12 नाम का जाप कर सकती हैं हर रोज, मॉर्निंग में 1 बार, इवनिंग में 1 बार, या आप उसको 5 बार, 7 बार, 11 बार ऐसे करके भी यदि मदर्स के पास में टाइम हो तो वो कर सकते हैं। इट इज़ वेरी रियली गुड फॉर द कंसंट्रेशन। गणेश जी हमारे बुद्धि के देवता हैं, सभी को पता है। तो उनके 12 नाम बहुत ज़्यादा अच्छी एनर्जी लेकर आते हैं बच्चों के साथ में। दूसरी चीज़ है कि अ, बच्चे को शांत रखना और बच्चे को भयमुक्त रखना। एग्ज़ाम्स के टाइम पे एंग्ज़ायटी ना हो, ज़्यादा डर ना लगे, उनके अंदर ये ज़्यादा घबराहट ना पैदा हो, ये ना कि अरे घबराहट में जाएँ और सारा एग्ज़ाम भूल जाएँ। बहुत सारे बच्चों के साथ ऐसा होता है। तो आप एक बहुत ही सिंपल उपाय है, एक तो जो लोग अपने बच्चों को चांदी के गिलास में पानी पिलवा सकते हैं, उनको ज़रूर अपने बच्चों को चांदी के गिलास में पानी पिलाना चाहिए। चांदी का गिलास अपने आप में शीतलता देता है, और मून की एनर्जी आती है, जो आपके लिए बहुत अच्छी है, आपको काम रखती है, जो बहुत इम्पोर्टेंट है एग्ज़ाम्स टाइम में। दूसरी चीज़ जो मदर्स कर सकती हैं, 1 गिलास लें या पूरा पीने का पानी, आप उसमें हनुमान चालीसा पढ़ें। इफ यू सी, ऐसे गिलास है, गिलास के अंदर आप देख के हनुमान चालीसा पढ़ रहा है, ठीक है? तो आपने हनुमान चालीसा पढ़ी, वो पूरा पानी हनुमान चालीसा से एनर्जाइज़ हो जाएगा। जस्ट मन वेरी में ये नाइस। भाव रखना है कि मैं अपने ये हनुमान चालीसा से एनर्जाइज़ कर रही हूँ, भाव रखते हुए आप हनुमान चालीसा पढ़िए, और वो पानी बच्चे को पूरा दिन पिलाइए। ओह! तो नाइस। ये भी एक बहुत ही अच्छा उपाय है जो आपको शक्ति देता है। हनुमान चालीसा, कलयुग में हनुमान जी और गणेश जी, ये 2 देवता हैं जिनको आप पकड़ के रखें। कलयुग में सबसे इम्पोर्टेंट है। हनुमान जी बहुत 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 ज़्यादा बढ़िया, इम्पोर्टेंट। बहुत और बढ़िया। भी मैं देती हूँ कि टिप, यदि बिहेवियर इश्यूज़ आ रहे हैं बच्चों के साथ में, यदि पेरेंट्स को, सो वो केसर का दूध पिला सकते हैं अपने बच्चे को। जी, केसर का दूध बिहेवियर इश्यूज में बहुत काम करता है। कोई भी वेरी चीज आप करो, आपका जो इंटेंशन है वो क्लियर होना चाहिए, सबसे इम्पोर्टेंट चीज। दैट्स कोई वेरी भी, इम्पोर्टेंट। या कोई भी उपाय करते हैं ना, हम सिर्फ उपाय कर लेते हैं, उपाय नहीं, वो जब उपाय करते वक्त यू हैव टू पुट दैट इंटेंशन। क्योंकि करेक्ट, मैं कोई भी चीज, उपाय कैसा होता है, आपने घर में किसी को लेकर आए कोई काम के लिए, एंड व्हेन यू उनको लेकर आए और बोले काम करो, अब वो क्या काम करेगा? until unless you don't tell कि क्या करना यस, है भाई तुमको। सो इट बिल्कुल, इज लाइक दैट, यू हैव टू करेक्ट, पुट इंटेंशन। और टेंस, आप चांदी का एक स्क्वायर चांदी की चेन में भी पहना सकते हैं, उससे भी बिहेवियर इश्यूज में काफी अच्छा रहता है। फिर करेक्ट, रेस्ट डिपेंड अपॉन योर पर्सनलाइज्ड डेट ऑफ बर्थ, करेक्ट, नंबर्स, ये वो, क्योंकि मैं बच्चों का भी नाम का पूरा करती हूँ, नेम न्यूमरोलॉजी। जैसे न्यूमरोलॉजी में आई हैव डन, आई डू ईच एंड एवरी पार्ट ऑफ न्यूमरोलॉजी। सो दैट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट कि आपके बच्चों का जरूर आप लोग चेक कराइए कि वो सही कनेक्टेड आपके डेट, उनके डेट ऑफ बर्थ के साथ उनका नाम प्रॉपर जा रहा है या नहीं। कई बार सक्सेस वहां भी प्रॉब्लम करती है। वेरी नाइस। आपने तो इतनी अच्छी-अच्छी, इतनी बढ़िया टिप्स दी हैं पेरेंट्स को। तो आई थिंक जो मेरे पेरेंट्स यहाँ सब देख रहे हैं, व्यूअर्स, ये सब इस चीज़ का भरपूर फ़ायदा उठाएँगे। एंड हम अभी हमें समय अलाउ नहीं कर रहा है,
बट हम चाहते हैं कि आज आज ही वैशाली जी को हम अपने इसमें आमंत्रित कर ले नेक्स्ट के लिए, जब भी वो अपना समय, कीमती समय में से कुछ समय हमारे लिए भी निकालें। और जो लोग यहाँ बैठे हैं, जो इसको वॉच कर रहे हैं इस वीडियो को, सो आप अपने डाउट्स और सब कुछ अपना नोट करके रखिए कि जब हम अगली बार आएंगे तो हम आपके पूरे प्रश्नों का उत्तर यहाँ दे पाएंगे। सो विद दिस आई एम रियली वेरी तो ब्लेस्ड मैं एंड यस, अनीता यस, जी, मैं आपको थोड़ा स्टॉप कर रही हूँ. यस। सॉरी, आई एम रियली सॉरी फॉर दैट, बट जस्ट गिव मी वन मोर मिनट, बिकॉज आई एम अ डेट एलिमिनेशन कोच. तो जो लोग यहाँ पे डेट एलिमिनेशन के लिए आए होंगे वो बोलेंगे, अरे मेरे को, हमको तो टिप दी नहीं, अनीता जी के पेरेंट्स ही टिप दी खाली. सो अच्छा, हाँ, मैं नाइस। थोड़े से टिप्स उनके लिए भी दे देती हूँ, ताकि जो जिनको मनी का जरूर, इश्यूज आ रहे हैं, या जिनको जरूर। आ रहे हैं, और जो स्पेसिफिकली मनी के लिए ये पॉडकास्ट देखने बैठे हैं, पेरेंट्स के साथ साथ, पेरेंट्स जिनको भी मनी का इशू है वो भी इसका फायदा ले. राइट, राइट. बिल्कुल। तो सबसे इम्पोर्टेंट जो हर समय आप लोग पॉडकास्ट में सुनते होंगे, वीनस वीनस वीनस, यस, इट इज रियली रियली वेरी इंपॉर्टेंट कि आप वीनस को अपने एक्टिवेट करके रखें अच्छे से. वीनस को एक्टिवेट करने का बहुत सारे तरीके हैं, जिसमें वॉचेस भी आती है, जिसके एनालिसिस भी मैं करती हूँ. सो यू कैन वॉच खरीदने से पहले एनालिसिस जरूर कराइए, हर वॉच अच्छी नहीं होती. दूसरी चीज, वीनस को एक्टिवेट करने के लिए इंपॉर्टेंट है कि आपके घर की लेडीज को आप उतना मान सम्मान दें, उनके साथ में बात करने, उनके शब्द क्या बोल रहे हैं, इट इज रियली वेरी इंपॉर्टेंट. मदर है तो उनको इक्वली इंपॉर्टेंस दे. रोज माँ के पैर दबाना जो हमारे पुराने था, वो लिटरली इसीलिए था कि आपकी मनी एनर्जी में कहीं कमी ना आए. सो सेम विद द वाइफ, अपनी वाइफ को खुश रखिए, हैप्पी रखिए, प्यार भरे शब्दों से बात कीजिए. उनके साथ कोई भी गलत शब्द या गलत व्यवहार बिल्कुल भी मत कीजिए. आपका वीनस सच में बहुत ज्यादा खराब हो जाएगा. इंक्लूडिंग बहन, बहन को भी उतना ही ज्यादा महत्व दिया गया है हिंदू सनातन संस्कृति में, इसीलिए दिया गया है. माँ, बहन और पत्नी तीनों का इक्वली स्थान है, बिकॉज दे आर वीनस. आपकी मनी एनर्जी को बनाने के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है. उसके बाद में आप दूध में शहद मिला के पी सकते हैं, और भी खुद भी पीना है और भी लोगों को पिलाना है. यदि आप बाहर दूध दे रहे हैं, जो भी लोग बाहर दूध देते हैं, प्लीज दूध में शहद मिला के दीजिए. इट इज गोइंग टू बी गिव यू अ लॉट गुड, अच्छे रिजल्ट्स आपको देंगे आपके इंटेंशंस के साथ में. बढ़िया। खासकर मंगलवार को देना बहुत ज्यादा अच्छा होता है. इसके डिटेल्स आपको जिसको भी चाहिएगा प्लीज कमेंट्स में लिखिएगा, मैं आपको सबको रिप्लाई करूंगी. सेम विथ घर का ड्राइंग रूम बहुत क्लीन, साफ, सुंदर रखना चाहिए, इंक्लूडिंग नॉर्थ, नॉर्थ वेस्ट. ये दोनों भी आपको बहुत अच्छे से क्लीन रखेंगे, ये आपकी मनी एनर्जी के लिए बहुत ज्यादा अच्छा है. एक नंबर देती हूँ, आप लोग नोट कीजिए, मैं धीरे धीरे बोल रही हूँ. दैट इज, यदि किसी के पैसे रुके हुए हैं, कहीं रुक गए हैं और पैसे मिल नहीं रहे हैं वापस, सो यू कैन यूज दिस नंबर, है ना. 821 821 45252. 821 45252. सो ये नंबर्स आपकी मनी एनर्जी के लिए बहुत अच्छे रहेंगे, खासकर जब यदि आपका पैसा कहीं अटका हुआ है. सो वेरी ये थी नाइस। मेरी छोटी छोटी टिप्स. तो आपने तो इतनी बढ़िया टिप्स दे दी कि नाउ एवरीबडी विल बी एंशियसली वेटिंग फॉर योर नेक्स्ट एपिसोड, एंड विल बी इनवाइटिंग यू इन आवर नेक्स्ट एपिसोड आल्सो. एंड फॉर द ऑडियंस आई वुड लाइक टू से दैट डोंट वरी, अगर आपका कोई डाउट क्लियर नहीं हुआ है, आपको बिल्कुल चिंता करने की जरूरत नहीं है, बिकॉज वैशाली जी को तो हमने अब जबरदस्ती अपना गेस्ट बना ही लिया है. अब हम बहुत परेशान करते रहेंगे और आपके पास लाते रहेंगे. So with that, I would like to just conclude this talk with one very crucial statement, that ये जो वैदिक नॉलेज है, ये हमेशा ट्रांसेंडेंटल ट्रुथ के साथ चलती है. और ये क्या बोलती है कि इट इज नेवर, नथिंग कैन be changed by time and place. So, transcendental truth, which is not changed by time and place, is the proclamation of Vedics. And जो भी अभी वैशाली जी ने बताया है कि ये बहुत पुराने समय से चला आ रहा है, और देखिए आज भी इसको
वैसे ही फॉलो किया जाता है जैसे हमारे पुराने संत महात्मा या पहले जो गुरु महाराज जितने भी थे, वो सब इसी को फॉलो करके आज हम पूरे संसार में हमारा जो हिंदुत्व है वो फैला हुआ है। और दिस इज जस्ट ड्यू टू द पावर ऑफ दैट नथिंग चेंजेस इन द वर्ल्ड, whether it is a place or time, it will remain as such. So with this, we'll just have a little prayer that, oh Brahma, let us lead us from death to immortality and from darkness to light. So इन सब चीजों के साथ हम अंधेरे से रोशनी की ओर चल रहे हैं। सो इसके साथ ही हम वैशाली जी का बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हैं कि उन्होंने अपना कीमती समय हमें दिया और इतनी प्यारी प्यारी बातें की हमारे से। तो थैंक यू सो मच वैशाली जी। थैंक थैंक यू सो मच मुझे बुलाने के लिए, और आप जब भी बुलाएंगे बिल्कुल मैं हाजिर हो जाऊंगी। और आप थैंक लोग को जो भी क्वेश्चन है आप कमेंट्स में लिखिए, हम जरूर आंसर करेंगे।